This conference will Yes, now be sir. recorded. चलिए ओम दीवान पढ़िए, हेडिंग पढ़िए, आगे का आर्टिकल पढ़िए. Random variables and its probability distribution. We have already learned about random experiments in formation of sample spaces. In most of these experiments, we were not only interested in the particular outcome that occurs, but rather in some number associated with that outcomes as shown in the following examples and experiments. In tossing two dice, we may be interested in the sum of the numbers of the two dice. Second, in tossing a coin 50 times, we may want the number of heads obtained. नेक्स्ट. Third, in the experiment of taking out four articles one after the other at random form a lot of 20 articles in which 6 are defective, we want to know the number of defective in the sample of 4 and not in the particular sequence of defective or non-defective articles. In all of the above experiments, we have a rule which assigns to each outcome of the experiment in a single real number. This single real number may vary with different outcomes of the experiment. Hence, it is a variable. Also, its value depends upon the outcomes of a random experiment and hence it's called random variable. A random variable is usually denoted by x. If आगे you पढ़िए. recall if you recall the definition of a function, you will realize that the random variable x is really speaking a function whose domain is the set of outcomes or sample space of a random experiment. A random variable can take any real value, therefore its codomain is the set of real number. Hence, a random variable can be defined as follows. A definition 4. A random variable is a real valued function whose domain is the sample space of a random experiment. For example, तो पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए. For example, let us consider the experiment of tossing a coin 2 times in successions. The sample space of the experiment is S equals to HH, HT, TH, TT. If X if X denotes the number of heads obtained, X is a random variable and for each outcome its value are given by X. H is equals to 2, HXT equals to 1, HTH equals to 1, XTT equals to 0. More than the random variables can be defined on the sample space. For example, let Y denote the number of heads minus the number of tails for each outcome of the above sample space. YHH equals to 2, YHT equals to 0, YTH equals to 0, YTT equals to minus 2. Thus, X and Y are two different random variables defined on the sample space S. ओके, थैंक यू सो मच ओम दीवान. देखिए ऐसा है कि मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर रहा हूँ. यहाँ पे जो पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है. सैंपल स्पेस जो है वो डोमेन बनने वाला है. एक्स बता ही दिया, फंक्शन बनेगा. फंक्शन क्या करेगा, गिन के देगा, काउंट करके देगा, ठीक है, कितने हैं. तो जैसे एग्जांपल नंबर 22 ले लेते हैं. एग्जांपल नंबर 22 बोल रहा है, पढ़िए तो कोई भी. परीक्षित सिंह पढ़िए. A person plays a game of tossing a coin thrice. For each head, he is given ₹2 by the organizer of the game, and for each tail, he has to give ₹1.50 to the organizer. Let X donate the amount gained or lost by the person. Show that X is a random variable and exhibit at it as a function on sample space. एग्जिबिट एज अ फंक्शन ऑन सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, ठीक है. कुछ समझ में आ रहा है कहानी? ये समझ में आ रहा है कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, क्योंकि 3 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं. क्लियर है क्या? यस सर. अच्छा,
अगर सब में हेड हेड आ जाए तो क्या होगा? तीनों में 3 हेड आए तो क्या होगा? कुछ वैल्यू आएगी? मतलब ये बता रहा है ना कि एक्स डिनोट अमाउंट गेन और लॉस बाय द पर्सन। तो बोल रहा है कि हर एक हेड आने पे कितना रुपए मिल रहा है उसको? 2 रुपए। और टेल आने पे 1.5 रुपए का लॉस हो रहा है, 1.5 रुपीज का। ये समझ में आ रहा है? अभी इसको कितना फायदा होगा 3 बार एच आ जाए तो? 6 रुपीज का। तो ये समझ में आ रहा है? कोई हिसाब बन रहा है यहाँ पे। अभी इसका क्या होगा? डबल एच टी का क्या होगा? 2.5 रुपीज। 2.5 कैसे मालूम 2.5? 2 + 2 + माइनस माइनस 1.5। माइनस 1.5। अच्छा, इस तरह की चीज समझ में मतलब आ गई। ये हिसाब किताब समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, गुड। तो वही देखो यहाँ पे किया है, ठीक है। एक एक करके सब पूरा हिसाब किताब निकाला है, बना हुआ है। देखिए ट्रिपल एच 2 × 3 ये सही किया था हमने। देन ये तीनों के बराबर होंगे तो इसको साथ में लिख दिया है, क्योंकि 2 एच है ना, डबल एच दिख रहा है। 2 हेड के लिए 2.5 रुपए मिल रहा है। 2 टेल अगर आ जाते हैं तो 1 रुपए का नुकसान होगा। हिसाब लगा लीजिए, तीनों बार टेल आया तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, 4.5 रुपए। तो ये जो चीज दिख रही है, ये आउटकम दिख रहा है, रेंज दिख रहा है, रेंज। x is a function on sample space whose range is this। ये चीज समझ में आ रही है? इनपुट कहां से लेते हैं? सैंपल स्पेस से। आउटपुट कोई रियल नंबर आएगा, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या है ये। रैंडम वेरिएबल को ही समझने के लिए बहुत सारे एग्जांपल पढ़ रहे हैं। पार्थ पढ़िए एग्जांपल 23। A bag contains 2 white and 1 red balls. One ball is drawn at random and then put back in the box after noting its color. The process is repeated again. If X denotes the number of red balls recorded in the 2 draws, describe X. कितने बॉल ड्रॉ कर रहे हैं? Sir, 2 white and सर एक बॉल ड्रॉ करे रैंडम में, 2 व्हाइट और 1 रेड में से। X denotes the number of red balls recorded in the 2 draws। 2 ड्रॉ कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको दिख रहे होंगे। इसके पहले कॉइन टॉस कर रहे थे तो 3 बार कॉइन टॉस किए थे तो 3 ट्रायल्स आए थे, ठीक है। हालांकि सैंपल स्पेस ही आपको फाइनली निकालना पड़ता है। तो 2 ड्रॉ के लिए कैसे बनेंगे सैंपल स्पेस बताइए? व्हाइट है, 2 व्हाइट है, ठीक है, और 1 रेड बॉल है। तो ये देखो ये सैंपल स्पेस लिखा है, दोनों व्हाइट हो सकते हैं। देन अच्छा, इसमें प्रोसेस क्या है? बॉल ड्रॉ करके वापस उसमें रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? 1 बाय 1 ड्रॉ कर रहे हैं कि एक साथ 2 बॉल उठा रहे हैं? 1 बाय 1 करके रखते जा रहे वापस। पुट बैक इन द बॉक्स आफ्टर नोटिंग इट्स कलर है ना। तो हो सकता है ना कि व्हाइट, अच्छा व्हाइट में आपके ऐसे बना दिया, निशान लगा लिया, व्हाइट 1 व्हाइट 2 नंबरिंग कर दी व्हाइट बॉल में, और रेड 1 में खाली R1 लिखा है। तो ये चीज समझ में आ रही है? W1 पॉसिबल है, W1 के साथ W2 पॉसिबल है, W2 के साथ W2 वापिस आ सकता है वही बॉल, W2 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 तो लिख ही दिए। अभी फर्स्ट व्हाइट के साथ रेड आ सकता है, सेकेंड व्हाइट के साथ रेड आ सकता है, पहले रेड व्हाइट बाद में दोनों रेड। ये चीजें पूरी समझ में आ रही है क्या? सैंपल स्पेस की पूरी कहानी। यस सर। अभी ओमेगा का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इनमें से कोई भी को हम ओमेगा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहा, डिफाइन कर रहा है कि एक्स तो फंक्शन है, ओमेगा इनपुट है आपके सैंपल स्पेस है, और आपको बदले में क्या देगा आउटपुट में? कोई भी एक रियल नंबर मिलने वाला है, पहले ही बता चुका है रियल नंबर आएगा। तो बोल रहे नंबर ऑफ रेड बॉल्स, क्योंकि पहले ही डिफाइन कर दिया है कि एक्स क्या है, नंबर ऑफ रेड बॉल बोल रहे हैं। यहाँ तो नंबर ऑफ रेड बॉल कुछ नहीं आएगा, व्हाइट वाले में 0। जहां पे 1 रेड बॉल आ रहा है 1 आएगा, जहां 2 रेड बॉल है वो 2 रेड है। सिंपल है, क्लियर है क्या? आप वैसे ही हिसाब लगा लो ना। एक बैग है जिसमें से एक एक करके 2 बार आपको बॉल ड्रॉ करने हैं, एक ही तो रेड बॉल है। क्या हो सकता है? रेड बॉल निकलने के लिए नंबर्स हो सकता है रेड बॉल निकले ही नहीं, 0 हो सकता है एक ही बार निकले। एक एक करके उठा रहे हैं, फिर बॉल का कलर नोट कर रहे हैं, फिर वापस बॉक्स में डाल रहे हैं बॉल को, फिर से दूसरा उठाए तो हो सकता है दूसरा भी रेड आ जाए। अगर यही चीज बोलता कि 3 बॉल ड्रॉ करने तब क्या सिचुएशन बनता? तब सीन बिल्कुल अलग होता। रेड बॉल के लिए 0 हो सकता था, 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 भी हो सकता था, लेकिन 4 कभी नहीं हो सकता। तो ये चीजें समझ में आ रही क्या बेटा आप लोगों को? तो ये बस पूरा हिसाब किताब है, कैलकुलेशन है, काउंटिंग है एक तरह से अगर मैं बोलूं
ऑल जैसे अपन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में काउंट करते हैं ना, हिसाब किताब करते हैं, जस्ट लाइक वैसा कुछ लगेगा आपको, फील होंगे, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। खैर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कल डिस्कशन करूंगा, अभी मैं रैंडम वेरिएबल पे फोकस करने वाला हूं। तो हम एक काम करते हैं, सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कल करेंगे, ठीक है, ये बड़ा पिक्चर है। पहले हम रैंडम वेरिएबल को ही समझ लेते हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे। मेन स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, वो भी प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में। स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ना है, आप समझ जाइए, ठीक है, टेबल बनाने, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने हैं, बट मीन और वेरिएंस ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। तो टॉपिक हालांकि लिखा जरूर हुआ है, लेकिन ये पढ़ेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। आगे मैं सीधा आपको एक्सरसाइज में लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस मिलेंगे। आप लोगों को ना ही मीन पढ़ना है ना ही वेरिएंस पढ़ने, बहुत ह्यूज चैप्टर है, पहले काफी ज्यादा होता था, इसके आगे और बर्नौली ट्रायल होता था, अभी सब डिलीट कर दिया, ठीक है। काफी ज्यादा पोर्शन जो है डिलीट हो गया प्रोबेबिलिटी से। अच्छी बात है, आप लोग कम टाइम पे ज्यादा पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग पहुंच गए हैं एक्सरसाइज में, और द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द एक्सरसाइज 13.4। एनीबडी हु वुड लाइक टू रीड द क्वेश्चन? अनादि? Yes, sir. State which of the following are not the probability distributions of a random variable. Give reasons for your answer. चलिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब बताएंगे तब आपको बाद में समझाएंगे, फिलहाल मैं आपको एक रैंडम वेरिएबल का मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पे इसने प्रोबेबिलिटी भी लिख दिया है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे जो सिंपल x है, इसी का आपको दिख रहा होगा कि x 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये चीज समझ में आ रही है क्या? अभी इनपुट नहीं दिया है, खाली ये टेबल है, तो ये x की ये आउटपुट है, 0 1 2 लिखा है, वैसे यहाँ पे x के आउटपुट लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4 पॉसिबल है। x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, तो वो जस्ट काउंटिंग है, ठीक है। तो जैसे कि एक आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ये जरूर पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए अनादि। An urn contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are randomly drawn. Let x represent the number of black balls. What are the possible values of x? Is x a random? 2 balls are randomly drawn, ठीक है, 2 बॉल निकालने हैं। x क्या है बताइए अनादि? What x represents? Anadi, am I not audible? Number of black balls. Okay, number of black balls. इसके आगे बताएंगे वंश, आप बताएंगे। ये मुझे बता दीजिए कि ब्लैक बॉल, 2 बॉल ड्रॉ करने हैं, कोई भी 2 बॉल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x बोल रहे हैं, पॉसिबिलिटी पे जाना है आपको। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x मतलब दोनों रिप्रेजेंट्स, x रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 ही बॉल ड्रॉ करने हैं। बताइए कि ये ब्लैक बॉल कितने आ सकते हैं? 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 2 हो सकता है। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा, इसी की प्रोबेबिलिटी बोल देता तब क्या होता? ये तो x की वैल्यू हो गई, प्रोबेबिलिटी बोल देता तब क्या होता? 0 आने की प्रोबेबिलिटी कि कोई भी बॉल जो है वो ब्लैक बॉल आया ही नहीं, मतलब रेड बॉल आएगा। यस। 2 बॉल हैं तो अपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है ना, तो पहला बॉल रेड निकलने, पहला बॉल ब्लैक ना हो, उसके चांसेस क्या होंगे? 5/7, मतलब दोनों बॉल रेड हुआ ना। 5/7 पहला बॉल नॉट रेड, 5/7 नॉट ब्लैक। सेकंड भी नॉट ब्लैक हो तो एक रेड तो निकल गया, 4/6। 4/6। ये समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई क्यों किया ये समझ में आ गया ना, 2 बॉल निकाल रहे हैं, क्योंकि डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर 1 बॉल होता तो 1 बॉल ब्लैक होता तो कैसे होता? 1 बॉल ब्लैक, सपोज पहला बॉल ब्लैक होता तो पहला बॉल ब्लैक कैसे होता? 2/7। अब दूसरा होता रेड, तो रेड कैसे होता? 5/6 होता। प्लस हो सकता था कि पहला बॉल रेड निकल जाता और दूसरा बॉल जो है वो ब्लैक निकल जाता है। ये समझ में आ रहा है क्या? कैसे समझ में आ रहे हैं? दूसरा दोनों बॉल जो है वो ब्लैक हो जाए तो पहला भी ब्लैक होने की चांसेस 2/7
दूसरा बॉल भी ब्लैक हो उसके चांसेस है 1/6। 1/6 ये समझ में आ रहा है क्या? यही ठीक है। प्रोबेबिलिटी कर देना, इसी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया जाता है। ये समझ में आ रहा है क्या? एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 3। अनुभव वर्मा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। Let X represent the difference between the number of heads and the number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of X? नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स obtained when a coin is tossed 6 times। 6 बार उछाल रहे हैं सिक्का। What are the possible values of X बोल रहे हैं। क्या क्या possible values of X है? Difference between the number of heads and the number of tails obtained बोल रहे हैं। बताइए क्या क्या डिफरेंस पॉसिबल है? 6 हेड हो सकते हैं, 6 टेल भी हो सकते हैं, 6 हेड हो सकते हैं, 6 के 6 टेल भी हो सकते हैं। डिफरेंस क्या हुआ? 6 - 6 0 है ना। नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल बोल रहे हैं। हो सकते हैं। हाँ, 0 से 6 तक भी हो सकते हैं। X is the difference between the number of heads and the number of tails बोल रहा है obtained when a coin is tossed 6 times। तो 6 टाइम्स से तो 3 हेड और 3 टेल आ सकते हैं ना। डिफरेंस 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? डिफरेंस 1 भी हो सकता है, 4 हेड आ जाए और 2 टेल आ जाएगा। तो 0 से 6 तो पूरा जा सकता है। वही बोल रहे थे, 0 से 6 तक की हो सकता है। सर 4 3 2 1 0 -1 -2 -4 तक जा सकता है। नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल बोल रहे हैं। तो नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल मतलब टेल अगर ज्यादा हो गया और हेड कम हुए तो माइनस भी तो हो सकता है ना। सर 4 3 2 1 0 हेड नहीं है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है? -6 हो सकता है, -5 हो सकता है क्या? 1 हेड 5 हाँ सर 5 टेल, हाँ सर हो सकता है। नहीं हो सकता कि हो सकता है? नहीं सर -5 कैसे होगा? -5 नहीं हो सकता, -4 हो सकता है। यस सर -4 होगा। अच्छा 2 हेड हो जाए और 4 टेल हो जाए तो -2 -2। अच्छा मतलब ऑड नंबर नहीं आएगा। यस ऑड नंबर नहीं आएगा ना। और अगर हेड 3 है और टेल भी 3 है तो 0 हो जाएगा। अब अगर हेड 4 है टेल 3 है तो नहीं, टेल 3 हो ही नहीं सकता, 2 ही होगा। 2 ही होंगे। 2 4 6 ये हो सकता है क्या? 2 4 6 यस सर। हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या? व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? समझ में आ रहा है क्या? कितने ये जो डेफिनेशन बोल रहा है इतने हेड। अभी तक क्या होता था कि सैंपल स्पेस निकालते थे, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते थे। अभी ये बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज जो है वो इस काउंटिंग को बताना है आपको। ये पर्टिकुलर x जो है फंक्शन है, इसकी काउंटिंग बताओ। ऐसा कुछ चल रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देवधारीवाल आप पढ़िए। Yes, sir. Find the probability distribution of number of heads in 2 tosses of a coin, number of tails in the simultaneous toss. पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे? x को अगर बोल रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स बोल रहे हैं तो नंबर ऑफ हेड 0 हो सकता है भैया। 0 1 2 0 हेड होता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अभी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों के दोनों जो है उसमें हेड ना है, सिर्फ टेल टेल रहे 1/4, 2/4 और 1/4। 2/4 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। समझ में आ रहा है? आदि आप बताइए क्वेश्चन नंबर 2। The number of tails in the simultaneous tosses of 3 coins. नंबर ऑफ हेड्स इन द Sir, साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइंस। तो x क्या क्या पॉसिबल है? नंबर ऑफ टेल 0 टेल 0 हो सकता है, 1 2 3। 1 2 3। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टेल क्या होगा? इज इट 1/7? 1/8 Sir, 1/7. 1/8 ओके। व्हाट अबाउट ओनली 1 टेल? 1 टेल 1 tail, that 2/8 3/7, 3/8. 3/8। 2 टेल बताइए अनादि। करणप्रीत आप बताओ 2 टेल। सर सर ये भी 3/8 3/8 होगा। 3/8 होगा। 3/8. 3/8 होता है। 3 हेड
ये भी 1/2। One by चीजें six. समझ में आ रही कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी टेबल को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए चारुल। Yes, sir. Number of heads in 4 tosses of a coin. अभी 4 टॉसेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड। 2, 3, बताओ 0 हेड आने के चांसेस क्या होंगे? 1 by 16. प्रोबेबिलिटी 1 by 16. हाँ 1/16 आपको पता, तो पहले में हो सकता है हेड आने के चांसेस 1/4, फिर दूसरे में आने के चांसेस 1/4, 1/4, 1/4। ये समझ में आ रहा है? अभी मैं सैंपल स्पेस पे नहीं जा रहा हूँ। अभी 1 हेड कैसे आ सकता है? 1 हेड कैसे आ सकता है? 1/2. 1 बाई पहले में हेड आ जाए, बाकी में टेल आ जाए, बाकी 3, तो बाकी 3 में टेल आने के चांसेस कैसे निकालोगे? पहले में हेड आ जाए। देखो ये पोजीशन है, ठीक है, ये 4 है ना, यहाँ हेड आ जाए, बाकी तीनों में टेल आए, क्या चांसेस है? कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 1/4। 1 by 4 ही तो है। So 4 by 16. 4 by 16 ही होंगे 1/16 होगा सर। 4 by 16 So होगा 4 by 16 हो रहा है. तो होगा 4/16। सर। हेड चारों में से कोई भी पॉइंट में आ सकते हैं ना। फर्स्ट में आ गया, सेकंड में आ गया, थर्ड में आ गया, फोर्थ में आ गया, और बाकी 3 में टेल हो गया। हाँ, तो इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये इन प्लेसेस को फिल करने के कितने रास्ते हैं हमारे पास। सारे प्लेसेस फिल करने के 2 चॉइसेस हैं, हेड टेल कुछ भी आ सकता है। तो टोटल 16 है, समझ में आ रहा है? टोटल चॉइसेस। अब हेड किसी एक में आ जाए तो 4 चॉइसेस हैं हेड किसी एक में भरने के, तो 1/4 होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। गलत बताया क्या मैंने? नहीं सर, सही है। नहीं। अच्छा, अगर 2 हेड आ जाते तब क्या होता? किसी 2 में हेड आता, किसी 2 में So हेड। 5 by 16. तो 5C2 करते कि नहीं करते? सॉरी 4C2 करते कि नहीं करते? 4C2/16 करते ना। सिलेक्शन आ गया? नहीं आया? हाँ क्लियर है ना? अगर 3 चूज करना होता, किसी 3 जगह पे हेड आते, तब क्या करते? 4C3 वापिस वही आता जो ये आ जाता, 4/16 ही आता। अगर चारों के चारों हेड होते तब क्या होते? 4C4 1/16। समझ में आ रहा है क्या अभी? ये समझ में नहीं, कनेक्ट कर पा रहे? देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है ना भैया? ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफी डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। इसके आगे आप लोगों को खुद को दिमाग लगाना है, दौड़ाना है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, सॉरी रैंडम वेरिएबल क्या है, काफी हद तक आप समझ गए। एक लास्ट मैं आपको और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। ये कौन पढ़ना चाहेगा? वंश पढ़ो। Yes, sir. From a lot of 30 bulbs, which हाँ include 6 defectives, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. Find the probability कितने बल्ब distribution. ड्रॉ कर रहे हैं? 4 बल्ब ड्रॉ कर रहे हैं Yes, sir. विथ रिप्लेसमेंट। हाँ, Find the probability distribution of the number of defective bulbs. डिफेक्टिव बल्ब। अब बताओ डिफेक्टिव बल्ब कितने हो सकते हैं? एक भी ना हो, 4 में से Yes, sir. एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकते हैं। टोटल 4 बॉल जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक भी बॉल डिफेक्टिव नहीं, मतलब सारे के सारे ठीक बॉल हैं। तो ठीक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बॉल डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को पी ले रहा हूं। कितने बॉल हैं जो डिफेक्टिव हैं? 6। चलो डिफेक्टिव को मैं क्यों ले रहा हूँ? डिफेक्टिव को चलो हाँ, डिफेक्टिव बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/30, 1/5 होगा ना। डिफेक्टिव नहीं होने के चांसेस 4/5, डिफेक्टिव होने के चांसेस 1/5। ये समझ में आ रहा है? अभी कोई भी बॉल जो है वो डिफेक्टिव नहीं है बोल रहा है, मतलब सारे बॉल सही हैं, चारों बॉल। तो बताइए पहला बॉल, जैसे 4 बॉल्स हैं आपके पास, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कोई भी बॉल जो है वो डिफेक्टिव नहीं है? The 1/4. 4 बल्ब ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक बल्ब, कोई भी एक बल्ब डिफेक्टिव होगा नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है। डिफेक्टिव होगा नहीं होगा उस 1 बल्ब की प्रोबेबिलिटी है। 4 के लिए क्या हो जाएगा?
कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। 30C4 हाँ 30C4 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 ऐसा क्यों लिखा आपने? सर सॉरी 24C4 हो सकता है बिकॉज 24 ही हमारे पास करेक्ट बॉल्स है एंड हाँ। उसमें से हमको 4 कोई भी निकालनी है और वो अगर सब करेक्ट बॉल ही निकल रही है तो 24 सैंपल स्पेस हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 30C4 यही बोलना चाह रहे हो आप? यस सर। आप बैठ रहे हैं क्या? कैसे बैठाना है? पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलेगा यहाँ पे। अभी बताओ 1 बॉल डिफेक्टिव होने के चांसेस क्या होंगे? तो डिफेक्टिव में से कितने लेंगे हम? कोई एक तो लेंगे ना। तो ये 20C4 लेने के बजाय 6C0 भी ले सकते थे क्या? यस सर। हाँ सर। यस सर। अच्छा चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 डिफेक्टिव पीस होंगे, उसके लिए क्या होगा? कोई एक डिफेक्टिव पीस होगा। 6C1 6C1 डिफेक्टिव में से कोई एक चूज करना है, ऐसा? यस सर। सर अपॉन 30C4 जो होते हैं वो होगा। लगता कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो 6C1 इंटू हो जाएगा, जो डिफेक्टिव नहीं है तो उसको भी सिलेक्ट करेंगे ना, तो वो हो जाएगा 24C3। भाई पहला डिफेक्टिव हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, चौथा ये पोजीशन है ना 1 2 3 4 पोजीशन भी तो मायने करेगा ना, कहाँ पे डिफेक्टिव 4 निकल। इंटू 61 हो जाएगा ना, 4 इंटू 61। देखो अगर एक बॉल डिफेक्टिव निकलता है तो डिफेक्टिव होने के चांसेस है 1/6। 1/6 है कि 1/5 है? 1/5 है। 1/6 6/30 मतलब 1/5 हो ना। और हाँ, डिफेक्टिव होने के चांसेस 1 और डिफेक्टिव नहीं होने के चांसेस कितने हैं? 4/5। तो ये 3 बार आएगा? नहीं आएगा, नहीं आ रहा है समझ में। लेकिन कोई भी जगह हो सकता है ना डिफेक्टिव के लिए, तो ये 4C1 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये समझ में आ रहा है 1 के लिए। अगर कोई भी बॉल डिफेक्टिव नहीं है उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला भी डिफेक्टिव नहीं, दूसरा भी डिफेक्टिव नहीं, तीसरा भी डिफेक्टिव नहीं, कोई भी जगह नहीं आ रहा है 4C0। 4C1 मतलब एक प्लेस डिफेक्टिव, 4C2 मतलब 2 प्लेस डिफेक्टिव, 2 प्लेस डिफेक्टिव मतलब 1 बॉल डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, स्क्वायर लग गया 1/5 इंटू 1/5, डिफेक्टिव नहीं की प्रोबेबिलिटी 4/5 4/5। ये चीजें समझ में आ रही क्या? काउंटिंग समझ में आ रहा है? 3 अगर डिफेक्टिव होंगे तो कोई 3 प्लेस चूज करने पड़ेंगे ना डिफेक्टिव के लिए। पहले में आ सकता है, दूसरे में आ सकता है, तीसरे में नहीं, चौथे में आ सकता है। इस तरह से 3 प्लेस हो सकते हैं जिसमें डिफेक्टिव आ सकते हैं। अब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है? हर एक बॉल डिफेक्टिव होगा उसकी 1/5। प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो क्यूब हो जाएगा। नहीं होगा चौथा बॉल डिफेक्टिव, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5। चीजें समझ में आ रही है क्या? आज जस्ट इंट्रोडक्शन था, कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए थैंक यू, बाय बाय।